ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی کہ اسے سیاحت کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصے تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان خوبرو بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی بادشاہ کے غلام کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے بادشاہ سے کہہ کر اس کو قیدی کروا دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کے محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچی۔ پہلے وہ ادا بجا لائے اور پھر ایک تحریری رنجش پیش کی۔ درج تھا، جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں اور اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں۔ اس لیے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والی شہر کے خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائے۔ جب وہ آ جائے گا تو ہم اسے بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں اور جناب میں عورت ہوں اور کسی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہوتی۔ والی شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں آؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت جو والی کا درد بھرا پیغام سمجھ رہی تھی بولی، اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے گھر تشریف کیوں نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ دیا، وقت تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ شہر کے قاضی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے قاضی ہمارا نگہبان، کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا، اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کو اجر عظیم بخشے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے والی شہر نے اپنے غلام کے کہنے پر قید میں ڈال دیا ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے حق میں میری مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ بولا، تم میرے گھر میں میرے ملازموں کے پاس انتظار کرو، میں والی کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں۔ تمہاری باتوں نے میرا دل جیت لیا ہے۔ وہ عورت اس کے دل کا بھید جان گئی۔ بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیے جہاں ملازمہ محل نہیں ہوں گے اور ہم اکیلے میں بات کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی وہی وقت بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی وہی بتایا۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر کی دعوت دی اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیرے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ وقت کے بادشاہ نے غلام کے کہنے پر اس نے جواب دیا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلیں، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ آپ اس ناچیز کے غریب خانے میں تشریف لائیں۔
मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त को रद्द नहीं करेंगे। बादशाह ने उसकी दावत कबूल कर ली। औरत ने बादशाह को अपने घर का पता दिया और उसे भी उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी 3 मर्दों को दावत दी थी। जब वो औरत बादशाह से बातें करके फारिग हो गई और उसके बाद एक दरकान के पास गई और उससे एक ऐसी अलमारी बनाने की दरख्वास्त की जिसके 4 हिस्से हों, हर खाना दूसरे खाने के ऊपर हो और अलहदा से खुल सके। फिर उसने ऐसी अलमारी बनाने की इजरत पूछी। तरकान बोला, वैसे तो इसकी मजदूरी 4 गुना है, लेकिन मैं तुमसे इतना मुतासिर हुआ हूँ, अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ तो मैं ये अलमारी बतौर हदिया पेश कर दूंगा। औरत ने खामी भर ली और बोली, लेकिन 4 के बजाय 5 खाने बनाना और उसे खास उस दिन लाने को कहा जिस दिन सब मेहमानों ने आना था। फिर दरकान ने उसे रुकने को कहा और थोड़ी ही देर में अलमारी तैयार कर दी। औरत उससे अलमारी लेकर घर चली गई और दरकान को भी उसी दिन उसी वक्त की दावत दी गई। घर पहुंचकर औरत ने चंद कपड़े निकाले और उन्हें मुख्तलिफ रंगों में रंगवा कर संभाल कर रख दिया। उसके बाद उसने दावत के लिए अशरा, फूलों फलों और अतर का इंतजाम करना शुरू कर दिया। जिस दिन मेहमानों ने आना था उस औरत ने अपने कीमती कपड़े जेब तन किया, अतर लगाया, घर में उम्दा कालीन बिछाए और सब मेहमानों की आमद का इंतजार करने लगा। इत्तेफाकन सबसे पहले काजी नमूदार हुआ और उसने बड़े एहतराम से खुशामदीद कहा। कदम बोसी के लिए रुकी और उसे हाथ से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। फिर वो उसके सामने खड़े होकर अठेलियां करने लगी। जब बोली, आप अपने कपड़े और पगड़ी उतार कर सुकून से बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम लाती हूँ, और उसे रंगीन कपड़े दे दिए। काजी ने अभी औरत के दिए हुए रंगीन कपड़े पहने ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। काजी ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? मेरा शोहर, औरत बोली। काजी के हाथ पांव फूल गए। काजी बोला, मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? औरत बोली, फिक्र न करो, मैं तुम्हें इस अलमारी में छुपा दूंगा, जो मुनासिब समझो करो। काजी बौखलाया हुआ था। औरत ने काजी का हाथ पकड़ा, उसे अलमारी के सबसे निचले खाने में धकेला और कैद कर दिया। फिर वो दरवाजे तक गई तो देखा वाली शहर था। वो कदम बोसे के लिए झुकी और उसे बड़े प्रेम से अंदर ले आई। फिर वो उसके करीब बैठकर बोली, हजूर वाली, इसे अपना ही घर समझिए और बड़े सुकून से सारा दिन यहाँ पर गुजारिए। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं आपको ये रंगीन कपड़े दे देती हूँ ताकि आप आराम कर सकें। जब वाली ने कुर्बतों के हाथ बढ़ाना चाही तो औरत बोली, अगर आप मेरे भाई की रिहाई की एहकाम मुझे लिख दे तो मेरे दिल को सुकून हो और मैं आपकी सोबत से ज्यादा महसूस हो सकूं। वाली ने कलम उठाया और गुलाम के नाम पैगाम लिखा, जब ये खत आप तक पहुँचे तो इस शख्स को रिहा कर दिया जाए जिसको ये लेने आई है। औरत ने वो खत संभाल कर रख लिया और उसकी आगोश में दोबारा सिमट आई। वो मोहब्बत के बारे में सोच रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने पूछा, ये कौन है? औरत बोली, मेरा शोहर, मैं क्या करूं? उसने बौखला कर पूछा, आप जाइए, मैं इससे लिपट कर लौटती हूँ। उसने वाली को अलमारी के दूसरे खाने में बंद कर दिया और दरवाजा खोलने लगी। दरवाजे पर वजीर था। वो उसे प्यार से अंदर लाई और उसकी तारीफें की। उसके भी कपड़े बदलवाए और उससे भी आगोश में होने वाली थी कि किसी ने फिर से दस्तक दी। वजीर घबरा गया। उसने भी अलमारी के तीसरे खाने में वजीर को बंद कर दिया और दरवाजा खोलने चली गई। इस दफा बादशाह सलामत थे। वो बादशाह की कदम बोसी के लिए झुकी और उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले आए। उसने बादशाह को खुसूसी जगह पर बिठाया और बोलने लगी, मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि आपने मेरी फटिया को रौनक बख्शी। हमने हल्के फुल्के कपड़े बनवाए हैं, इन्हें पहनकर देखिए। उसने बासके गिनती कपड़े उतवा कर सादा रंगीन कपड़े पहनने को दिए। औरत उससे गुफ्तगू कर रही थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई।
बादशाह ने पूछा, ये कौन है? मेरा शोहर, औरत बोली। बादशाह गुस्से में आ गया। उसे कहो अपनी मर्जी से चला जाए, वरना उसे ताकत से वापस भेज दिया जाएगा। औरत बोली, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं उसे प्यार से वापस भेज दूंगी, आप जरा आराम कर लें। उसने बादशाह का हाथ पकड़ा, उसे चौथे खाने में बंद किया और वापस आने का वादा करके दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा खोला, वो दरकान खड़ा था। उसने औरत को सलाम किया। औरत ने कदरे नाराजगी से कहा, तुमने अलमारी ठीक नहीं बनाई, उसमें क्या खराबी है? दरकान ने मोजरत के अंदाज में कहा, उसका पांचवा खाना छोटा है, तुम खुद घुसकर देख लो। उसके मुआयने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो औरत ने उस खाने को भी बंद कर दिया। वो खत लेकर सीधी जलवाए पैगाम दिया और अपने आशिक को रिहा करा के ले आई। उस औरत ने अपने शोहर को सारी कहानी सुनाई। वो बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बोली, इस वाक़े के बाद हम इस शहर में नहीं ठहर सकते। चुनाचे अपना सामान ऊंटों पर लाद कर वो दूसरे शहर पर रवाना हो गए। वो 5 मर्द जो अलमारी के 5 खानों में कैद थे, एक अजीब अजाब से गुजर रहे थे, और खाने को कुछ और न पीने को कुछ, पेशाब को रोकने का अजाब उन पर अलग। आखिर दरकान के सबर का पैमाना लबरेज हो गया और उसका पेशाब खता हो गया। उसके बाद सिलसिला जारी हो गया। बादशाह ने वजीर के सर पर, वजीर ने वाली के सर पर, वाली ने काजी के सर पर पेशाब कर दिया। काजी चीख उठा, बेगैरती और बेहयाई की हद हो गई। क्या ये कैद काफी नहीं थी? जो कुछ आपसे भी जलील करना था। वाली ने उसकी आवाज पहचानते हुए कहा, खुदा तुम्हारा अजर ज्यादा करेगा। उसके बाद जब वजीर ने वावेला मचाना शुरू किया तो बादशाह ने उसकी आवाज पहचान ली, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए खामोश रहा। अचानक वजीर बोला, खुदा उस औरत पर लानत भेजे, उसने बादशाह के अलावा शहर के सब अफसरान को इस मुसीबत में डाला है। ये सुनना था कि बादशाह बोला, फिक्र न करो, मैं सबसे पहले उसके जाल में फंसा हूँ। ये सुनते ही दरकान बोला, मैंने तो इसके लिए ये अलमारी बनाई थी, उसमें ही मैं कैद हूँ। उसके बाद वो सब एक दूसरे से बातें करने लगे। जब हमसायों ने घर को वीरान देखा तो जमा हो गए। एक बोला, यहाँ एक औरत रहा करती थी, न जाने उसे क्या हुआ, हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहिए। इससे बेशतर कि काजी या बादशाह हमें लापरवाही के इल्जाम में धर लें। चुनाचा वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी अलमारी देखी और इंसानों की भूख से रहने की आवाजें सुनी। उनमें से एक बोला, क्या इस अलमारी में भूत प्रेत है? दूसरे ने कहा, हमें इस अलमारी को जला देना चाहिए। काजी ने ये सुना तो चीखा, ऐसा हरगिज न करना, मैंने कहा था इस अलमारी में जिन हैं जो इंसानों की जुबान में बातें करते हैं। ये सुनना था कि काजी ने पहले तिलावत कुरान पाक की और उसके बाद हमसायों को अलमारी के करीब आने की दावत दी। जब वो करीब आए तो वो बोला, मैं काजी खैर हूँ, ये मेरा नाम है और इस अलमारी में बहुत से आदमी बंद हैं। उसने सबका तारुफ करवाया, लेकिन तुम लोग इस तरह बंद कैसे हुए? एक ने पूछा। चुनाचे उसने कहानी सबको तफसील से सुनाई कि हमसाए एक दरकान को बुलाकर लाए, जिसने उस अलमारी को खोला। वजीर, बादशाह और दरकान को रिहा किया गया। जब सब ने एक दूसरे को अजीब व गरीब रंगीन कपड़ों में देखा तो खूब एक दूसरे पर हंसने लगे। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर जिंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।